મજામાં બધા આનંદમાં. જનરલી હું બધાની જ્યારે પણ માઇક લઉં ને તો પહેલી શરૂઆત આ જ હોય છે, કારણ કે તમે આનંદમાં હોય તો વાત મૂકવાની મજા આવે. ખાસ આપણા જીવન સાથે ઘણી બધી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. અમુક ઘટનાઓ એવી હોય કે કાયમી છાપ ઊભી કરી જાય, જેને આપણે જલ્દી ભૂલી શકતા નથી, કે જેના ઉપર આપણું ધ્યાન વિશેષ ગયું હોય, અને એવી ઘટનાઓ હોય. તો હું જેવી સેશનની ઘટનાને પછી જોડીશ, પણ એ પહેલાં હું મારી શાળામાં જ્યારે હું ભણતો હતો એ વખતની વાત છે. મારો અભ્યાસ આદર્શ સ્કૂલમાં જ થયેલો છે. તો આદર્શ સ્કૂલમાં ધોરણ 9માં જ્યારે હોમવર્ક ચેકિંગ હતું, ત્યારે સ્વાભાવિક મારી પણ ટેવો હતી ક્યાંક ક્યાંક હોમવર્ક બાકી રાખવાની, તો જ વિદ્યાર્થીનો ગુણ થોડો થોડો દેખાય. કારણ કે મોટાભાગનું અમારું ગ્રુપ એવું જ હતું કે ભાઈ કોઈકના કોઈક વિષયમાં બાકી જ હોય. એટલે મારે ગુજરાતી વિષયનું હોમવર્ક થોડુંક બાકી હતું, અડધું પેજ. અને એ વખતે એ શિક્ષકે, હું શિક્ષકનું નામ નહીં લઉં કારણ કે દરેક શિક્ષક એ પણ મારા માટે આદર્શ જ છે, એ એમની જે જવાબદારી હતી એમને નિભાવી હતી. પરંતુ એ હોમવર્ક બાકી હતું એના માટે કરીને મને 10 મિનિટ સુધી ચૂંટલો ભરે રાખ્યો હતો. આજે પણ યાદ કરું ને તો દુખે છે. 10 મિનિટ સુધી એ છોડ્યો નહોતો મને. અને લિટરલી ત્યાં હું ઊભો ઊભો રડતો હતો, તેમ છતાં એમને મને છોડ્યો નહીં કે બાકી કેમ રાખ્યું, બસ એક જ. અને મારી કોઈ વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતા. મારું કોઈ કારણ રજૂ કરવા માટે પણ મને કોઈ મોકો આપ્યો નહોતો. કારણ કે જે વર્ષોથી પરંપરા ચાલી આવતી કે શિક્ષા કરવી જ જોઈએ, એને અનુરૂપ એમનો પણ વાંક નથી, એ પણ ક્યાંકથી એવી રીતે શીખીને આવ્યા છે. એ અત્યારે ધ્યાન ગયું, એ વખતે મને એવું નહોતું ધ્યાન ગયું કે શીખીને આવ્યા છે. કારણ કે અહીંયા જે બી ચર્ચા થાય છે આપણે છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી, એના પરથી આપણું થોડું થોડું ધ્યાન જાય છે. એટલે એ વખતે મને એ વિષય પ્રત્યે અને શિક્ષક પ્રત્યે ઘૃણા થઈ ગઈ કે ભાઈ ખરેખર ના ચાલે આ શિક્ષક, કે આટલું બધું કોઈ પણ કારણ સાંભળ્યા વગર એ આવી રીતે. અને ત્યાં મને લિટરલી 1 મહિનો એ જાંબુ રહ્યું હતું. અને એટલામાં કાળો ડાઘ અને લોહી જામી ગયું હોય ને એ રીતસરનું દેખાતું. પણ ઘરથી પણ ડર હતો, અને ઘેર ઊંધું હતું, ફરિયાદ તો કરાય નહીં શિક્ષકની, એ તો બીજો ચૂંટલો આવે એટલે તકલીફ બી હતી. એટલે ઘેર પણ રજૂઆત નથી કરી શકતા, જુઓ. એટલે એના પરથી મને થોડુંક વિષય પ્રત્યે ઘૃણા થઈ. એટલે વિષય મેં ધીમે ધીમે એને છોડતો ગયો. એટલે વિષય પણ નામ નહીં દઉં, કારણ કે એ વિષયના પણ અહીંયા શિક્ષકો બેઠા છે. એટલે બધા શિક્ષકો માટે માન હોય, દરેક વિષય માટે માન હોય. એના પછી એ અત્યારે કનેક્ટ કરતાં કરતાં જેમ જેમ જેવીમાં વાત ગઈ, એટલે મેં જેવીમાંથી એક મુદ્દો મેં પકડ્યો છે ને એના ઉપર હું કામ કરી રહ્યો છું. ઘણી બધી વાતો થઈ પણ હજુ મેં બધી એક્સેપ્ટ નથી કરી. કારણ કે હું હાલ એક સાથે બધું એક્સેપ્ટ કરવા જાઉં તો ભેળ બની જાય. ના મમરાનો ટેસ્ટ આવે, ના ટામેટાનો આવે. એટલે હું એક એક ઉપર કામ કરી રહ્યો છું, પછી દરેકની ક્ષમતા. એટલે મેં સૌથી પહેલાં મેં સ્વભાવ ઉપર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. મેં મારા સ્વભાવ ઉપર એમ. પહેલાં હું પ્રભાવમાં ને દબાવમાં ખૂબ માનતો, પ્રભાવમાં કામ કરતો કે ભાઈ આવું જ થાય, આમ જ કરાય, બરાબર. એટલે એના કારણે મારા સ્વભાવ ઉપર પણ થોડીક અસર હતી. જેમ કે તરત ગુસ્સે થઈ જવું, હું જ સાચો છું, ના કેમ થાય, થવું જ જોઈએ, બરાબર. આ બધું લો એન્ડ ઓર્ડરવાળું કામ જે કહેવાય ને એના ઉપર. ઘરે પણ એ જ રીતે, શાળામાં પણ એ રીતે, સેમ કક્ષા. ઘરે પણ એવું હોય ભાઈ ના કેમ થાય, થવું જ જોઈએ, બરાબર, આમ નહીં આમ જ થવું જોઈએ. એટલે એ બધું ધ્યાન નહોતું જતું એ વખતે. અહીંયા જેમ જેમ આપણે અહીંયા બેસતા થયા એમ વાત થઈ, અને એ વાતને ધ્યાનથી મેં સાંભળી કે તમે સૌથી પહેલાં તમારા ઉપર કામ કરો. એટલે મેં સ્વભાવ ઉપર જ્યારથી કામ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી બાહ્ય પ્રભાવ મારા ઉપર ઓછો વિપરીત થાય છે, ઓછી અસર થાય છે. બાહ્ય પ્રભાવની એટલી મારા ઉપર બહુ અસર થતી નથી. અને આજે ધીમે ધીમે એ સ્વભાવ ઉપર કામ કરવાના કારણે મારો ગુસ્સો
ઘણો બધો ઓછો થઈ ગયો છે. હું એવું ના કહી શકું કે નથી આવતો, બરાબર, કારણ કે હજુ એના ઉપર કામ કરવાની જરૂર છે. એટલે ઘણો બધો ગુસ્સો અહીંયાથી બેઠેલા શિક્ષકો જે મારા ખૂબ નજીકના પહેલેથી મિત્ર હતા છે, હું અહીંયા સ્કૂલમાં આવ્યો પહેલાંના પણ છે, તો એમને પણ ખ્યાલ છે મારા સ્વભાવ વિશે, બરાબર. નીચે આપણો જે સેવક સ્ટાફ છે એમાં ખાસ કરીને સોનલબેનને વધારે અનુભવ છે, બરાબર. એટલે સોનલબેનને પણ ઘણી વખત કહેતા હોય છે એમ. એટલે ધીમે ધીમે એના ઉપર મેં કામ કર્યું ત્યારે મને એટલી ખબર પડી કે સ્વભાવ એ સ્વતંત્ર છે, પ્રભાવ અને દબાવ એ પરતંત્ર છે. એટલે પરતંત્ર ઉપર કામ કરવાની જરૂર નથી. જો સ્વતંત્રતા ઉપર કામ કરશું ને તો પરતંત્રતા આપોઆપ નીકળી જશે. હવે એનાથી લઈને મને એટલું શીખવા મળ્યું કે બાળકોમાં શારીરિક સજા તો ન જ થવી જોઈએ, બિલકુલ નહીં. એને પણ એક સાંભળવાનો મોકો હોવો જોઈએ. અમારા શિક્ષકો જોડે હજુ ડિબેટ ચાલે છે આ બાબતે, બરાબર. એમનું ક્યાંક માનવું એવું છે કે ના સાહેબ થોડુંક તો રાખવું જ પડે, ચાલે જ નહીં, બરાબર. એમ અમે પણ કહીએ છીએ ભાઈ હા ડર, પણ એ ડર એવો ના હોવો જોઈએ કે તમારી સાથે વાતચીત ન કરી શકે, તમારી આગળ કોઈ વાત ન મૂકી શકે. કારણ કે આજથી 2 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું તો મારી ઓફિસમાં કોઈ બાળક આવતું નહોતું, બરાબર. એને ખબર છે કે સાહેબ ગુસ્સામાં જ હોય એટલે ઓફિસમાં ના આવે. આજની તારીખમાં મને એટલો આનંદ છે કે 3જા ધોરણવાળું પણ બાળક પૂછ્યા વગર ઓફિસમાં આવી જાય અને મારી સાથે લિટરલી વાત કરે છે. એટલે મને એનો આનંદ છે. એટલે મારું ત્યાં ધ્યાન ગયું કે ખરેખર બાળકો કેટલા એકદમ મિજાજી હોય છે અને ક્યારે આપણે એમને એવો મોકો આપ્યો જ નથી. આપણે એવું જ માનીએ છીએ ભાઈ હું શિક્ષક છું, હું કહું એમ જ થાય, એ સીધા જ રહેવા જોઈએ, બરાબર, ક્યાંય એવી રીતે ન રહેવા જોઈએ. તો એ જે માન્યતા હતી મારી, એ માન્યતા એ ભ્રમ હતો. અને ભ્રમમાંથી હવે હું બહાર આવું છું ત્યારે મને ખબર પડી ના ખરેખર બાળકો જોડે સંવાદ થવો જોઈએ. જ્યારે ગિરીશ સર શરૂઆતમાં વાત કરતા ને એટલે એ બી મારા માન્યામાં તો નહોતું જ આવતું. મેં કીધું આ બગાડવા બેઠા છે સાહેબ બધું. બધું આ એકદમ વાતાવરણને છે ને એકદમ કરી મૂકશે. આમ શરૂઆતમાં અંદરથી એવો વિચાર થાય કે જો બધાને આવી રીતે કહી દઈશું કે ભાઈ આમ છે તેમ છે આ રીતે, તો ધીમે ધીમે આ તો બધા આપણા ઉપરી થઈ જશે, બરાબર. પણ એ વાત એ વખતે એવી લાગતી, અત્યારે એવું લાગે છે ના એ એવું ન હોઈ શકે. ખરેખર તમે બાળકો સાથે પ્રેમ કરો તો તમને રિઝલ્ટ તમે જે નથી ધાર્યું ને એના કરતાં પણ સારું મળશે. આ મારો પોતાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. જે હું પહેલાંનો અનુભવ, જે પહેલાં અનુભવ કરી રહ્યો હતો અને અત્યારે જે અનુભવી રહ્યો છું, આ બંનેમાં મને આટલો ફેર છે. એટલે મેં જે આ સ્વભાવ પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, ધીમે ધીમે આગળ ઘણું બધું છે જે હું અત્યારે હું ધારો કે ઘરે પણ વાત કરું તો હું એમ નથી કહેતો તમે આ રીતે કરો. જેમ કે પહેલાં હું ગયા વર્ષના હું મારા બર્થડેની વાત કરું તો ગયા વર્ષે મેં બર્થડેમાં લગભગ 7 કેક કાપી હતી, બરાબર. પહેલાં એમ જ માનતો ભાઈ બર્થડે સેલિબ્રેશન તો બહુ ધામધૂમથી કરાય, બરાબર. પણ એ 7 કેક કાપ્યા પછી પણ જેટલો આનંદ પહેલાં નહોતો ને એટલો આનંદ આ બર્થડેમાં હતો. કારણ કે કેક કાપીને નાસ્તો કરાવવો, બધા મોજ પાર્ટી કરવી, બરાબર. એની જગ્યાએ મેં આ વખતે સૌથી વધારે ફેમિલીમાં ટાઈમ આપ્યો. બર્થડેના દિવસે બાળકો સાથે રહ્યો, ફેમિલી સાથે રહ્યો, બેઠા, સંવાદ કર્યો, ચર્ચા કરી. પછી કિશોરભાઈ અને ગિરીશભાઈ જોડે જે રેડિયોમાં સંવાદ થયો હતો એ સાંભળ્યો એ દિવસે ફરીથી કે ભાઈ આપણે આ સાંભળીએ. એટલે એમ કરતાં કરતાં આપણું ધ્યાન ક્યાંક જાય. ઘણી વખત કેવું છે આપણી ઉંમર એવી છે ને જલ્દી એક્સેપ્ટ ના થાય ઉંમરના કારણે કે ભાઈ આટલી ઉંમરે આ બધું ક્યાં હોય, પણ ખરેખર જરૂર આ ઉંમરે છે. આપણે નહીં કહેતા ભાઈ ઘરડા થઈએ એમ પછી આપણે તીર્થયાત્રાએ જવું જોઈએ, બરાબર. તો ખરેખર આ ઉંમરે આપણે જે અત્યારે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એનું જે ફળ છે ને એ આપણને તો મળે જ, પણ એની સાથે સાથે આપણા બાળકોમાં પણ એ ઉતરે છે. તમને જોઈ રહ્યો છે બાળક, કારણ કે તમે જે રીતનું વર્તન કરો છો એ બાળક જોઈ રહ્યો છે. અને એક દિવસ મારું ધ્યાન એટલા માટે વધારે ગયું કે લિટરલી અમારો જે પર્વ છે, બરાબર, એ 2જા ધોરણમાં હતો, હાલ 3જામાં છે. 2જા ધોરણમાં હતો એટલે એને એક જ શબ્દ વાપર્યો હતો. એક વખત એને ગુસ્સો કર્યો, સાંભળજો. ત્યારે મેં કીધું ભાઈ તું આટલો ગુસ્સો કેમ કરે છે? તો કે તમે તો રોજ કરો છો. મને શું કહ્યું? તમે રોજ કરો છો, મેં તો આજે જ કર્યો, તો તમે મને કેમ કહો છો? મને આવું સામે કહ્યું એને.
ત્યારે મારું ધ્યાન ગયું ભાઈ વાંક એનો નથી, હું જે કરું છું એ જ એ કરી રહ્યો છે, બરાબર. એટલે જુઓ ક્યાંથી ક્યાં આવે છે. હવે બીજાવાળા ધોરણના બાળકને ગુસ્સો કરવાનો ક્યાં આવતો જ નથી, એ તો રમકડું છે, તેમ છતાં એ ગુણ એનામાં ઉતરે છે. ત્યારે મારું વિશેષ ધ્યાન ગયું કે હું જેવી રીતે જીવું છું ને એ એનું દર્પણ છે. તો ખરેખર મારા જે દર્પણ તરીકે મારે જો રહેવાનું હોય તો હું એવો જ પડછાયો બનું કે જેનું વ્યક્તિત્વ આપોઆપ ખીલી ઉઠે. તો એ પહેલાં મારે મારા સ્વભાવ ઉપર કામ કરવાનું મને વિશેષ યોગ્ય લાગ્યું, એટલે હું આજે એના ઉપર કામ કરી રહ્યો છું. અને ધીમે ધીમે જેમ જેમ જેવી સેશનમાં બેસીએ છીએ અનુકૂળતાએ, ક્યારેક અનુકૂળતા નથી પણ રહેતી, તેમ છતાં ક્યાંક વિડીયો ક્લિપ આવે તો એને સાંભળી પણ લઈએ છીએ, બરાબર. તો હું એવું નથી કહેતો કે તમે પણ એ રીતે કરો, કારણ કે કોઈને કહેવા માટે આજ્ઞા હું નથી માનતો, મને યોગ્ય લાગે છે હું કરું છું. અને જે કહ્યું છે અહીંયા કે તમે માની ન લેશો, બરાબર, જાણો. એને માનવાની કોઈ ક્રિયા નથી, જાણવાનું છે. એટલે હું ક્યારે અહીંયા કોઈ પણ વાત થાય અને હું જલ્દી એક્સેપ્ટ નથી પણ કરી શકતો, કારણ કે માની લેવાની પ્રક્રિયા નથી, જાણવાની પ્રક્રિયા. હું જાણું પછી જેમ જેમ ખબર પડે એમ એમ એના ઉપર કામ કરું છું. યોગેશભાઈએ ખૂબ સરસ ધ્યાન આકર્ષણ કરાવ્યું. જોકે એમને સાંભળતા સાંભળતા ઘણા બધાને એવું થયું હશે, ઇન્ક્લુડિંગ મી, મારી સાથે, કે આપણી જ વાત કરી રહ્યા છે. માણસના છે ને ઘરે ઘરે સેમ સિચ્યુએશન્સ છે. આપણને એવું લાગે છે કે મારે સાથે જ આવવું છે. તો અહીંયા એમને જે અમુક એક બે મુદ્દા કીધા, તો એને અનુસંધાનમાં હું બે મારી વાત મૂકી દઉં, પછી આપણે કન્ટેન્ટની સાઈડ થોડા આગળ વધીએ. તો બાળકને એમને કહ્યું કે એમને એકવાર આવીને આવી એક ઘટના, આપણા એક शिक्षक मित्र છે, ओके, हिंदी में बता रहे थे नहीं मैम, कौन से, ओके, थैंक यू, याद आ गया मुझे. तो एक टीचर की सेम ऐसी एक घटना उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी कि सर जब शायद उन्होंने हमारे सबके सामने ही की थी मेरे ख्याल से, वो सर का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं अभी. तो उन्होंने बताया था कि जब मैं शायद 9th-10th क्लास में था, तब मेरे एक टीचर ने, मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उस दिन वो गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने उनकी जो साइन थी उससे मेरे पूरे मुंह पे साइन कर दिया था, और मैं बोल रहा था फिर भी वो मुझे मार रहे थे. मुझे आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने उस दिन मुझे क्यों मारा था. दो तीन दिन पहले बच्चों के साथ हम बात कर रहे थे, तब बच्चों का भी कुछ ऐसा जजमेंट था कि सर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि टीचर अपने घर का फ्रस्ट्रेशन हमारे पे निकाल रहे हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये बच्चों के वर्ड्स हैं. हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि टीचर्स अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रहे हैं. तो सोचने वाली बात है. ठीक है, हमारे सामने वो कन्फेस ना करे अलग बात है, हमारे सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज भी उतना अच्छा है कि वो एक मर्यादा है, वो मर्यादा है कि टीचर के सामने नहीं बोलते. लेकिन वो कितने दिन तक रहेगी. जैसे कल मेरी और स्मिथ सर की बात हो रही थी, सर अपने स्कूल में तो बहुत अच्छा है, दूसरी स्कूल में जाओ तो टीचर डरते हैं बच्चों से, कभी टीचर इकट्ठा होके उनको कभी हमला ना करे वैसा डर रहता है. तो कुछ तो कभी हुआ होगा ना, तभी उन्होंने बताया. तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो सिंपल हमें इतना सोचना है कि मैं आज एक बच्चे को एक चाटा मार रहा हूं, वो एक नहीं है, वो मिलियंस है.
एक चांटा नहीं है, वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरा एक चांटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो मल्टीप्लाई होते होते वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसके परिवार में उसकी पत्नी पति के साथ भी यही व्यवहार करेगा, उसके बच्चों के साथ भी यही व्यवहार करेगा, और साथ में जिस पद पे होगा वहां पे भी यही व्यवहार करेगा। उसकी शुरुआत हमारे एक चांटे से हुई थी। इसलिए कल हम फ्राइडे हमारी जो मीटिंग होती है, हमें बैठे थे, तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी इंसान कुछ भी गलती करता है तो उसके माँ बाप भी उतने रिस्पॉन्सिबल है, उसके टीचर्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। तो सबको सजा होनी चाहिए, सबको जेल में डालो। क्योंकि वो कनेक्शन नहीं देखते हैं ना हम अभी, क्योंकि प्रत्यक्ष क्या दिखता है, मैंने एक चांटा मारा और उसकी भलाई के लिए मारा। हम जस्टिफिकेशन भी कैसे करते हैं, उसकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले को तो नहीं लग रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है वो, और लग भी गया, जैसे लग भी गया। आप मान लो हम दो कंडीशन सोचते हैं। एक बच्चे के साथ हमने खराब व्यवहार किया, एक कंडीशन ऐसी है कि वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक कंडीशन ये है, तो उसमें तो वो चीज मल्टीप्लाई होगी ही होगी। वो एक दिन के लिए नहीं होगी, वो पूरी लाइफ के लिए होगी। जैसे सर को आज कितनी एज हो गई सर की, और कितने साल पहले की बात उन्होंने बताई, और शायद वो आज तक वही कर रहे थे कहीं ना कहीं। अच्छा हुआ कि ध्यान चला गया धीरे धीरे अपना। मैंने भी बच्चों को बहुत मारा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं हाथ उठाया, लेकिन अब मन नहीं करता है। फर्क ये हो गया, कभी अब ऐसी दिमाग में सोच नहीं आती कि इसको मारे, क्योंकि लगता है कि ये उठाएंगे ना तो ये मिलियंस हो जाएंगे। आज का एक चांटा कल जाके करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दिखेगा जिस दिन आपको कि मेरा एक चांटा एक नहीं है, वो पूरे समाज में जाने वाला है। और फिर हम समाज से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो। उसके बीज तो हमने बोए थे, ध्यान नहीं जाता है ना। जिस दिन ध्यान जाएगा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। करना नहीं है कि मेरा एक बुरा व्यवहार कहां तक जा सकता है। आज अपनी जो बच्चियां हैं वो शादी करके 1-2 साल में डाइवोर्स ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है? वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एज अ टीचर, क्योंकि हम नहीं समझा पाए। तो अकेले टीचर का भी रोल नहीं बोल रहा हूं मैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, सब मिलके क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, जिससे समाज ऐसा बन रहा है कि आज समाज में सबसे ज्यादा भय एक इंसान को एक इंसान से है। तो इस पे तो सोचना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी वाला काम है। और जिम्मेदारी का मतलब ऐसा नहीं कि हम सीरियस हो जाए, जिम्मेदारी का मतलब है हम आराम से खुशी से उसको निभाएंगे। तो आज हम थोड़ी एक हमारा नीचे योगेश भाई की ऑफिस के सामने एक सेंटेंस है, किसने पढ़ा हुआ है? मैं लिख देता हूं यहां पे, याद है किसी को? नहीं है वो भी है, लेकिन सामने जो नोटिस बोर्ड पे है वो दिखेगा पीछे। अच्छी बातें अच्छा काम और अच्छा
व्यवहार। यही है बच्चे, बूढ़े और बड़ों का काम। अच्छी बातें, अच्छा काम, अच्छा व्यवहार, यही है बच्चे, बूढ़े और बड़ों का काम। अब इसको देखते हैं। तो जैसे हम मानव की बात कर रहे हैं ना, मानव, हम अभी किसका अध्ययन कर रहे हैं? मानव का अध्ययन कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारी खुद की बात कर रहे हैं। यहां दूसरा कोई नहीं है। बात कोई भी रखे, मैं रखूं, योगेश भाई रखे, कोई भी रखे, बात हो रही है किसकी? हमारी। तो मानव के पास नेचर ने क्या दिया हुआ है? तो दो चीजें दी है। एक है कल्पनाशीलता और दूसरा है कर्म स्वतंत्रता। एक जो पावर है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन और कर्म स्वतंत्रता, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले सोचते हैं कि कल्पनाशीलता, सबके पास इमेजिनेशन है। अब इमेजिनेशन इन्वेस्ट कहां हो रहा है वो देखना है हमें। इमेजिनेशन का मतलब हम सारे लोग हैं, उनके पास विचार है, हम विचार से सोचते हैं। और कल्पनाशीलता से दो चीजें हो सकती है। कल्पनाशीलता से दो चीजें हो सकती है कि कल्पनाशीलता से हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। वास्तविकता यानी वस्तु, मतलब रियलिटी, मतलब रियलिटी। जो है उसको हम कल्पनाशीलता से समझ सकते हैं। और दूसरा है, हम कल्पनाशीलता से भ्रम भी पाल सकते हैं, मतलब वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है। मतलब वो है नहीं, लेकिन उसको हम सोच सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप लोगों ने हाथी देखा हुआ नहीं है और मैंने एज अ टीचर आपसे एक कल्पना की, आपको बताया, क्योंकि रियल में मैंने भी देखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे भी किसी ने बताया था, इसलिए मैं भी बता रहा हूं कि जो हाथी होता है उसके 4 पैर होते हैं और वो सोटी जैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं। उसको 2 सींग होते हैं, उसकी एक बड़ी पूंछ होती है। अब मैं बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो रहा है ना? ठीक है? और आपको उसको सही भी मान रहे हो, नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि हाथी को आपने देखा हुआ है। चीज जब मैंने देख ली एक बार, पहले तो हम नॉर्मली क्लासरूम में क्या करते हैं, हम बच्चे को वो करवाते हैं, उसकी कल्पना करवाते हैं, बेटा ये है, ये होता है, इसको ये बोलते हैं, और बच्चा उसको इमेजिन करता है। और इमेजिन करते करते धीरे धीरे वो वस्तु को पकड़ना चाहता है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तब शब्दों से बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, शब्द के साथ कोई अर्थ जुड़ा हुआ होता है। शब्द के साथ क्या होता है, हम जब भी पढ़ाते हैं तो बुक्स होती है, बुक्स में शब्द होते हैं, शब्द के पीछे
एक अर्थ होता है और अर्थ के पीछे कोई वस्तु रही होती है। ये वस्तु को पकड़ने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। शब्द भी किसने बनाए? इंसान ने। लेकिन जिसने हाथी देखा उसने फिर सोचा कि इसको मुझे दूसरे को बताना है, क्योंकि उसने अब तक नहीं देखा है तो उसको बताना है। तो मैंने गलत बता दिया, तो बच्चा तो छोटा है अभी, तो उसको मैंने जो इमेजिनेशन दी, तो मैंने जो अभी बोला वो भ्रम था कि वास्तविकता थी? भ्रम था। अब भ्रम से क्या होता है? भ्रम से क्या होता है? तो भ्रम से भय पैदा होता है। हम जितनी ये जो चीज है ना, वो हमारी मान्यताएं है। यानी कि जिस मान्यताओं को हमने अभी तक जाना नहीं है, ऐसी मान्यताएं जिसको हम मान के चल रहे हैं, फिर वो कुछ भी हो। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, अभी 2-3 दिन पहले एक अच्छे बड़े एडवोकेट की मैं बात सुन रहा था, और सामने भी बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा बैठे थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, भय बिना प्रीत नहीं। क्या? भय बिन प्रीत नहीं। अब इस चीज को पकड़ो आप। मतलब हम बोल रहे हैं कि प्रीत करनी है, प्यार करना है, तो भय इज रिक्वायर्ड, फियर तो होना ही चाहिए। मतलब तो यही निकल रहा है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं हम सुना हुआ लगता है ना। कितने लोगों ने सुना हुआ है, भय बिन प्रीत नहीं। अब इस चीज को हम थोड़ा देखते हैं यहां पे, भय बिन प्रीत नहीं। तो ये जो भय है ना, वो क्या है? भ्रम है। और उससे हम क्या, प्रीत क्या है? प्रीत यानी प्रेम। प्रेम क्या है? वास्तविकता, मतलब रियलिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अनरियल चीज से हम रियल चीज को समझने जा रहे हैं। पॉसिबल है? झूठ से सच साबित कर सकते हैं हम झूठ बोल बोल के साबित कर रहे हैं कि भी सच हो, ये सच है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है? किसी भी घटना को ले लो आप, तो हमारे वर्ड्स ही ऐसे आते हैं। जैसे दूसरा एक वर्ड्स, निष्फलता ही सफलता की चाबी है। अब निष्फलता रियलिटी नहीं है, वो तो भ्रम है। और भ्रम से हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? सफलता को। युद्ध से शांति होगी, युद्ध अस्तित्व में रियलिटी युद्ध है ही नहीं, क्योंकि वो होती ना तो उससे उसके साथ हम जी पाते। तो इसका दूसरा आउटकम्स क्या है? वास्तविकता का आउटकम्स क्या है? कि वास्तविकता के साथ हम जी सकते हैं, इसके साथ जीना होगा, और इसके साथ झेलना होगा। भ्रम जब भी मेरे पास होगा, तो मुझे जब जब फील होता है कि मैं दुख में हूं, मैं किसी पीड़ा में हूं, तो समझ लो आप कुछ मान्यता, किसी भ्रम के साथ चल रहे हो और इसलिए झेल रहे हो। फिर वो रिलेशन पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, व्हाटएवर, फिर टीचर का और स्टूडेंट्स का हो। जब जब मुझे फील होता है मैं झेल रहा हूं, जैसे एज अ टीचर मैं जॉब कर रहा हूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी जरूरत है इसलिए इस जॉब को भी मैं झेल रहा हूं, तब तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि रियलिटी समझ में नहीं आ रही है मुझे। एक टीचर का वैभव नहीं समझ में आ रहा है, एक मानव का वैभव नहीं समझ में आ रहा है।
दुनिया में सबसे बड़ा कोई पद है तो वो शिक्षक का है। जब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी, यानी कि तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी जब तक मैं मानव को ना समझ लूं, क्योंकि मेरा काम ही मानव को तैयार करना है और मैं खुद मानव हूं वो मुझे मालूम नहीं, तो सामने में मानव को मल्टीप्लाई कैसे कर पाऊंगा? होगा ही नहीं। तो वास्तविकता जब जब मेरे सामने आएगी तब उसके साथ मेरा जीना होगा। भ्रम जब तक मैं पाल के रखूंगा, देखो ये वास्तविकता, इसका मतलब हो गया जानना, ये हो गया मानना। ये मानना है, ये जानना है। जानने से जीना होगा, मानने से, देखो जो माना हुआ है लेकिन अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने माना हुआ है, तो ग्लिम्स मिलेंगे। जैसे मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, मैं कहीं पे दान कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं दान क्यों कर रहा हूं, तो वो जो मैं कर रहा हूं ना, एक टाइम के बाद वही चीज मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे मैं कहीं किसी को दान कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है? तख्ती में मेरा नाम आ जाए। मेरा पर्पस क्या है? इससे मेरी पहचान बन जाए। तो वो पर्पस ही गलत है। तो उस टाइम पे वो मैं कहीं किसी चीज को मान के, यानी कि दान करने से, बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि दान करने से अपना अगला भव अच्छा हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हमने जोड़ के रखी है। तो ये सारी चीजों के साथ हम करते रहेंगे और एक्सीडेंटली हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो फिर आपको लगेगा कि मैंने लाइफ टाइम में किया, किसी ने भगवान ने मेरे सामने देखा भी नहीं, फिर गिल्ट हो जाएगा। लेकिन दान क्या चीज है? दान ऐसी चीज है कि जो मेरे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है उसको मैं दूसरे के लिए, उस जिसको जरूरत है उसको दे रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं जिसका हम महिमा मंडन करते हैं। मतलब मेरे पास है, जैसे मुझे जरूरत है कि भाई मेरे पास 100 रुपये है, मुझे 50 रुपये की जरूरत है, तो बाकी के 50 में से मैं 30-40 रुपीज परिवार के लिए रखता हूं, बाकी के 10-20 रुपीज में दूसरे को दे देता हूं। पैसों से भी ऐसा नहीं होता, पैसों से ही दान होता है, बहुत सारी चीजें। मतलब मेरा पर्पज इतना है यहां बताने का, दान का पर्पज नहीं है। तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो चीज बिना समझे की जाएगी वो भ्रम ही कहलाएगा। फिर वो अच्छी बात होगी तो भी वो भ्रम है, अच्छी बात होगी तो भी वो भ्रम है। मतलब भ्रम का आउटकम्स क्या आएगा? भ्रम का आउटकम आता है दुख, पीड़ा आएगी। वो कभी भी आ सकती है, उसकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। आज जो मान के चल रहा हो किसी को इंस्टेंट मिल जाएगा रिजल्ट, किसी को 10 साल बाद मिलेगा, किसी को 100 साल बाद मिलेगा, किसी को इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा। जो मान के चल रहे हैं वो तो माना हुआ है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी के बिना हम जी नहीं सकते। तो इसका आउटकम क्या आएगा? और वो भी कैसा? निरंतर सुख हो जाएगा। फिर इसका आउटकम्स और क्या निकलता है? तो भय। इसीलिए हमें सराउंडिंग जो सोसाइटी में दिखने को मिलता है, आज हमारी कोई बेटी है और उसको कहीं बाहर हॉस्टल में कहीं रखना है, अदरवाइज वो रात को थोड़ी लेट हो गई, तो दिमाग में पहले कैसे थॉट्स आते हैं? पहले यही थॉट्स आते हैं, कलकत्ता वाला कुछ याद आ जाएगा और कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि समाज में मुझे विश्वास नहीं है। मेरे आसपास जो वातावरण है वो पूरा भय से भरा हुआ है। मुझे भरोसा ही नहीं है इंसान पे। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मे बी आई एम रिस्पॉन्सिबल। पकड़ना तो ये है कि आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जैसे यहां बैठ के मैं कुछ गलत सोच रहा हूं तो उसका कोई बहन के लिए मैं गलत सोच रहा हूं, उसका मतलब ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं घट रही है, रेप की व्हाटएवर, तो उसके अंदर मेरी मानसिकता उसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब आई एम विथ दिस इंसिडेंट।
मैं उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है, बाहर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे इंटरनल तो वो चल रहा है। यानी कि मेरे अंदर अपवित्रता है और वो मुझे पीड़ा देगी ही देगी। और यहां पे भय है तो यहां पे क्या है? अभय। या इसका आउटकम क्या है? जब वास्तविकता को हम जान लेते हैं तब उसका आउटकम है विश्वास, और इसका आउटकम है अविश्वास। कुछ भी जोड़ दो, अब जो भी जोड़ना है लगाते रहो आगे। जितना नेगेटिव आएगा इस साइड आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा मोस्ट ऑफ यहां पे आएगा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं पॉजिटिव थिंकिंग करना है। बच्चों के साथ कभी बात होती है ना, बेटा स्ट्रेस ना आए उसके लिए क्या करना है आपको? सर पॉजिटिव थिंकिंग करना है। आ नहीं रही है पॉजिटिव थिंकिंग, आ नहीं रही है, मैं बाय फोर्स कर रहा हूं पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ऐसे बी पॉजिटिव नहीं होते। जब तक चीज पकड़ में नहीं आएगी कि सुख क्या है, कहां से मिलेगा, उसकी डेफिनेशन क्या हुआ, मैं क्या हूं, मैंने क्यों जन्म लिया है, मैं अस्तित्व में क्यों हूं, मेरे होने का कोई पर्पस है कि नहीं है? तो मेरा पर्पस है कि मुझे निरंतर सुखी होना है। मेरा मतलब किसी भी मानव का ले लो आप, लेकिन हम कई बार डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। हम देखना ही नहीं चाहते रियलिटी, क्योंकि रियलिटी देखेंगे तो डर लगेगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा है नहीं। इसलिए कई सारी चीजों को हम जान के भी हमारे साथ लेके चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं क्लास में सारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो मुझे लग रहा है कि बच्चे हैं ना मेरे क्लास में कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये डर है। लेकिन एक बार प्यार करके तो देख लो क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि देखो, मतलब यहां पे ये बात हो रही कि अच्छी बात क्या है, तो इट इज रियलिटी। तो रियलिटी के दर्शन होने चाहिए, एवरीडे होने चाहिए। एक बार हमारी बात हो रही थी, योगेश भी आए, महेश भाई भी से, कि सर ध्यानाकर्षण करवाते हैं ना तो टीचर्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। कि आप कुछ करो, मतलब 4-5 ध्यानाकर्षण के बाद कुछ तो डालो उसमें पनिशमेंट। मैंने कहा देखते हैं। अब उसमें क्या डालने जैसा है मैं आज आपसे बात कर देता हूं कि 4-5 ध्यानाकर्षण हो जाए तो उसमें अब क्या डालना है, 1/4 डालना है कि 1/2 डालना है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो तैयार हो ना सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? ओके, तो आज से हम एक प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबको भरोसा है, क्यों हाथ उठाया? सबको भरोसा है, इसीलिए उठाया ना कि पनिशमेंट नहीं बोल रहे तो हमको तो नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं मारने के लिए बता रहे तो हमको कहां से पनिशमेंट करेंगे। तो अब क्या करना है? तो रियलिटी के दर्शन करवाने हैं बच्चों को। कैसे करवाएंगे? तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी क्लास में जाएंगे तब 2 बच्चों को खड़ा करेंगे और उनकी जो अच्छी बातें हैं पूरे क्लास के बीच में हम बताएंगे और फिर अपना क्लास शुरू करेंगे। छोटा सा काम करना है, इतना सा। क्या? क्लास में जाएंगे, 2 बच्चों को खड़ा करेंगे और वो 2 बच्चों के बारे में आपने जो ऑब्जर्व किया है अच्छी बात उसकी वो बोलनी है और फिर अपना क्लास कंटिन्यू करना है। कितनों से हो पाएगा ये? ओके। उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई बच्चा रह ना जाए, मतलब वही 2 बच्चे हर रोज ना हो, क्लास में से कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। अब उसमें ऐसा भी होगा जिस बच्चे के लिए आपने बहुत कुछ सोच के रखा होगा कि यार ये तो पूरा, इसको तो नहीं सुधार सकते,
उसके बारे में भी कभी बोलना हो जाएगा आपका। तो अब आपको ढूंढना है क्या, उसमें क्या क्या अच्छाई है। तो अब क्लास में जाके अच्छाई का मतलब क्या होता है आप समझो। अच्छाई मतलब हम ओवर वैल्यूएशन, अधिमूल्यांकन नहीं करेंगे, महिमा मंडन नहीं करना है। वो बच्चे में जो रियल है वो बताएंगे। हर एक बच्चे में ब्यूटी है, वो देखना तो शुरू करे, एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये चीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज के बाद हर सैटरडे को कौन याद करवाएगा? रंजन बेन याद करवाएंगे हर बार। कितनों ने, तो जितने हमारे दिन में 5 क्लास है तो 5 से 5 2 10, तो 10 बच्चों के बारे में हम अच्छी बात एवरीडे बता के यहां से स्कूल में से जाने वाले। बाकी तो हमारा काम कर रहे हैं वो करेंगे। इससे क्या होता है हम देखते हैं। आपकी लाइफ में क्या होता है, बच्चों की लाइफ में तो जो होगा होगा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या होता है उसको ऑब्जर्व करना है। कमाल हो जाएगा। एक बार शुरू करते हैं हम। तो ये बताने का पर्पज इतना है कि हमारी कल्पनाशीलता कहां हमें इन्वेस्ट करनी है, जो रियलिटी है उसके साथ। सुख रियलिटी है, दुख भ्रम है। अब इस चीज को मुझे पहचानना है तो मैं वही कर सकता हूं जिसके साथ मैं जी सकता हूं, वो रियलिटी है। जिसके साथ मैं नहीं जी सकता वो भ्रम है। मैं गुस्से में कितने टाइम रह सकता हूं? पूरी लाइफ रह सकता हूं, तो वो रियलिटी नहीं है। सिंपल सा चेक पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्योंकि हम हमारी बात कर रहे हैं ना, तो हमारी बात कर रहे हैं तो उतना तो पकड़ में आ ही जाएगा। क्या ये चीज के साथ मेरा जीना होगा कि नहीं होगा? तो मुझे लग रहा है कि हम इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। क्या अच्छी बातें, अच्छी बातों का आउटकम्स आएगा, अच्छे काम, अच्छा व्यवहार, ये अपने आप आउटकम आ जाएगा। अपनी लाइफ में भी चेंजेस हो गए, बच्चों के लाइफ में भी चेंजेस हो गए। बच्चा तरस रहा है सालों से कि कभी टीचर मेरे बारे में कुछ बोल दे। उसकी जो सालों की जो ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो जाएगी इससे। बच्चा 10-12 साल से यहां पढ़ता है, लेकिन कभी उसके कान में उसके टीचर के अच्छे वर्ड्स नहीं गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए। तो इससे इतना तो हो जाएगा, और कुछ ना होगा तो उतना तो हो जाएगा। वो बच्चा यहां से इतना तो फील करेगा कि नहीं, मैं भी कुछ अच्छा इंसान हूं। देखो फिर मल्टीप्लाई होगा। आपको लग रहा है ना वो मल्टीप्लाई होगा। हम देखेंगे उसको, अपनी लाइफ में भी देखेंगे। क्योंकि दूसरे के बारे में अच्छी बातें बताना वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया आज के जमाने में। तो किसी की अच्छी बात बताना, यानी कि अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बताऊं, क्योंकि अपने में है नहीं तो कैसे बताएंगे। तो आई होप लास्ट में देखो, प्रेरणा बेन का गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सबको लगा होगा अच्छा। किसी को और सिंगिंग अच्छा लगता है तो मुझे 1-2 और रिकॉर्डिंग करके भेजो। और इसके साथ लास्ट में जो हमारी मनोकामना है वो एक बार बोल देता हूं। भूमि स्वर्गताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्म सफलताम यातु, नित्य यातु शुभोदयम। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो, नित्य शुभ हो, नित्य शुभ हो। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। मड़िए।